Rashida, because there is only a distortion that I could hear. Okay, now the call is getting recorded, so the students who will join later can actually see things for themselves. Okay, Rashida has dropped a message and she says, Sir, I can hear you. All right, Rashida, enjoy the class for reading. Although it is usually a boring class when it is reading module. Okay, now yesterday it was requested by some of you to bring a question like this, where there are no proper nouns, but still you have to match. Because yesterday we matched some sort of ideas to or definitions and experiences of some people to their given definitions. So because they were proper nouns, so we could easily find them. But this time it is a different idea. So tomorrow is going to be the last class for reading module, where I'll be discussing some questions related to headings, choosing the headings for um, any paragraph. However, the test that I have chosen today, we have got different question types. All the question types that we are discussing today are actually, all of these question types are absolutely new for you, because yes, no, not given questions were not discussed here. Only true, false, not given questions were discussed. There is a subtle difference between them, although that is something that we can ignore that difference, because usually that difference doesn't make a lot of impact. And then this classifying the information to some particular type of option. However, this time we don't have proper nouns, so of course this is different. And the last question type, which is also sometimes possibly it can be there on your test, that is a flow chart. Although this flow chart is a very easy question and it follows a sequence usually, but don't worry about it. Let's deal with all of them, and that would be the second last session for reading module. Okay, now once again, let's begin with the questions directly. Now, yes, no, not given and true, false, not given are different in the sense that when we talk about true, false, not given, usually we refer to the information that has to be identified as true or false or not given. However, when it comes to a question type where we have yes, no, and not given, then it is all about the approach, attitude, perspective, opinion, or claim of the writer. This is what yes, no, not given questions are all about. So there is a subtle difference. So this one could be a bit more general and abstract in its way, because of course it is not information, rather it is a claim or an opinion or sort of a general understanding or approach of writer's opinion. That is what we are going to assess. So it is a bit more complex as compared to true, false, not given. However, true, false, not given questions are rather more common as compared to yes, no, not given. But once again, sequence is followed. So all the three question types today we are discussing are different than the ones that we discussed earlier. But remember, true, false, not given, and yes, no, not given, both of these two question types do follow a sequence most of the times. And there could be exceptions, as I have mentioned earlier. Okay. Now, yes or not given questions. So the first question is, studies show drugs available today can delay the process of growing old. So now, in this particular question, there is a claim of the writer. It is not information. Information is usually universally acceptable, but claims could be, argued about, right? So this information might be doubted. So common sense will be only, applied only up to a limited level. So you can't actually guess answers using your common sense or general knowledge. However, let's see whatever the writer has to say. Sometimes it could be a genuine information, but usually it's an opinion or an approach or a claim. So studies show means researches वगैरह दिखाते हैं, figures, results वगैरह हैं, that statistics and the drugs available today. Drugs means actually medicine, of course. Here, drugs does not mean the things that usually people
take to get intoxicated. So can delay the process of growing old. So यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो आज की दुनिया में, तो स्टडीज के मुताबिक उनसे जो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड है वो डिले हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एजिंग का जो फैक्टर है, एज जो होती है इंसान की, वो स्लो होना। एज से मुराद जाहिर है कि उम्र तो बढ़ती रहेगी, बट जो वीकनिंग ऑफ द बॉडी है, और फिजिकल बॉडी किसी भी ह्यूमन बीइंग की, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दे स्टॉप वर्किंग एंड ह्यूमंस पास अवे। दिस इज द यूजुअल ट्रेंड। सो वो प्रोसेस स्लो करना, उसकी बात कर रहे हैं कि कुछ स्टडीज के मुताबिक ऐसा पॉसिबल है। दिस इज व्हाट द राइटर क्लेम्स इस क्वेश्चन के अंदर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल हैव टू गो बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट कि क्या ऐसा है, क्या राइटर ने ऐसा क्लेम किया है। Let's go and find out. So sequence follow होता है. So what we do is we actually search from the beginning. However, the keywords, can anyone guess that what keywords can actually work here? इस क्वेश्चन में से हम कौन से कीवर्ड्स लेके जाएंगे? एक मिनट में जरा अपने हैंड फ्री चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ी प्रॉब्लम। एक मिनट, हाँ प्लीज दोबारा बोलें। Growing old. Okay, so it's not my hands free, it is your mic, सहरिश। अब अगर हैंड्स फ्री लगे हुए तो उनको अनप्लग करें एंड देन दोबारा प्लग इन करें तो एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूं मैं आपको। मुझे आप सब लोग क्लियरली सुन पा रहे हैं? ये यस ना, गुड सर। अब आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, ओके फाइन, गुड, थैंक यू सर। मैंने बोला था ग्रोइंग ओल्ड एंड ड्रग्स। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रोइंग ओल्ड है, जाहिर है कि उससे रिलेटेड बात हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि द सेम वर्डिंग, बट सम वर्डिंग रिलेटेड टू ग्रोइंग ओल्ड। देन ड्रग्स की बात है ऑफ कोर्स, एंड स्टडीज की जगह पे इट कुड बी रिसर्च, इट कुड बी स्टैटिस्टिक्स, इट कुड बी यू नो फिगर्स का लफ्ज हो सकता है, सर्वे हो सकता है। ओके, एंड ठीक है, बस बाकी टुडे वगैरह तो इजी है। ठीक है, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे द सर्च फॉर एंटी एजिंग पिल, और आंसर्स देखना शुरू करें। वैसे ये हेडिंग्स पढ़ लें, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज के लिए लाजमी होती, और फिर शुरू से बताएं कि क्या कोई आंसर मिल रहा है रिलेवेंट। You can tell me as soon as you find out the answer. Sorry, yes, इसका आंसर है। What could be the reason, if you could explain? Sir, because the caloric restrictions लिखा हुआ कि these could delay aging and increase longevity in humans too. ये वाली line suggest कर रही है कि the author is agreeing to that. Where? In fifth line, sir. Second last paragraph. Fifth line. Second last line. यहाँ पे to find is suggest that. So यहाँ पे देखें ये क्या लिखा है? Could delay. So it is about a possibility. It does not exist yet. So I think you missed the initial lines, क्योंकि हमने कहा था कि शुरू से आंसर ढूंढना है। As researchers on aging noted recently, no treatment on the market today has improved to slow human aging. हाँ, yes. So अभी available नहीं है। Could delay यानी there is a possibility in future, लेकिन क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट टेंस में था ना, यानी टुडे। So it's false. Yes, sir. It's false, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है। वैसे भी ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग्स तो अवेलेबल है ही नहीं। Yes. Exactly. और वो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में ये है ना कि वो लिमिटेड कैलोरीज वगैरह, you know, and not letting them, you know, taking, you know, whatever they want to eat, उससे रोकना है और
and typical type of proteins देना and calories देना. All right. So it is yes no or not given. No. अच्छा ये भी ज़हन में रखें कि apparently yes no not given and true false not given जो है वो similar नजर आ रहे हैं, लेकिन IELTS का जो टेस्ट है उसमें अगर गलती से आपने no की जगह false लिख दिया या no की जगह wrong लिख दिया या no की जगह cross लिख दिया तो वो गलत कंसीडर होगा. So do follow the instructions carefully. So जज्बात में कुछ और ना लिख देना, no no ही है बस. no की जगह आप n लिख सकते हैं लेकिन no लिखें. yes की जगह y लिख सकते हैं बट yes लिख लें पूरा. नॉट गिवन की जगह आप NG लिख सकते हैं लेकिन इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नॉट गिवन पूरा ना लिख सकें. सो डोंट टेक एनी रिस्क्स ऑल्दो इट इज अलाउड बट नॉट एवरी इन्विजिलेटर नोज थिंग्स. क्योंकि आप हैरान होंगे जब आप इन्विजिलेटर्स वगैरह से मिलेंगे. समटाइम्स दे आर टू इग्नोरेंट. सो प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहें. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is scientific evidence that eating fewer calories may extend human life. अभी जिस लाइन पे आप लोग पहले ही पहुंच गए थे, याद आया होगा अभी. Yes, calories वाली So line. second last line. बिल्कुल. तो साइंटिफिक एविडेंस यानी वो फाइंडिंग्स का जिक्र था. ईटिंग फ्यूअर कैलोरीज मींस कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में एक्सटेंड ह्यूमन लाइफ, ये वही बात थी. अब हमें बस वापस जाके देखने की जरूरत है. हमें पहले ही देख लिया हुआ है. आंसर क्या है इसका? Yes. Yes है. Got it. Fine. Well done. Next. Not many people are likely to find a caloric restriction diet attractive. अब इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, यानी कि बहुत कम लोग इसको. Not many का मतलब ये है कि ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं, यानी कम लोग हैं. तो अब क्या किस चीज के लिए जो ऐसे लोग कि जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट को अट्रैक्टिव, जाहिर है कि जब उसमें फिर आपको एक लिमिटेड टाइप का फूड खाना है तो वो अट्रैक्टिव नहीं है. तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे पास हैं. नॉट मेनी पीपल, इसकी जगह पे फ्यू पीपल आ सकता है या लेस नंबर ऑफ पीपल वगैरह. लाइकली सम पीपल हो सकता है बिल्कुल, या माइनॉरिटी का लफ्ज आ सकता है. लाइकली की जगह पे कोई भी वो आ सकता है, मॉडल वर्ब आ सकता है. Pond. फिर उसके बाद क्या है? Appear. हाँ, Like. अपीयर आ सकता है, सीम आ सकता है, कैन कुड आ सकता है वगैरह. और अट्रैक्टिव का वर्ड है तो उसके लिए फिर उससे रिलेटेड कोई वर्ड आ सकता है. तो बस मेरा ख्याल है कि काफी कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड का वर्ड भी है. तो ये तो खैर अब जगह जगह पे, इसलिए कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है. डाइट का लफ्ज जो है वो जरूर यहाँ पे चलेगा. तो लेट्स सी, इसमें से जो भी चीज हमें मिलती है उसको देखते हैं. तो सवाल को याद करें कि बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को पसंद करते हैं, यानी उस तरह के फूड को, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड फूड को. अभी जो आंसर हमें सेकंड मिला था वो यहाँ मिला था, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए. तो अब यहाँ से आगे देखें कि डाइट की बात कहाँ पे हो रही है और फिर पता चलेगा. मोइज साहब भी आ चुके हैं. अनवार हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं. तो सवाल क्या था? नॉट मेनी पीपल आर लाइकली टू एंजॉय. नॉट मेनी पीपल, कम लोग. जी. So ये few models Yes, को sir. stick to chat harsh region है. हाँ बिल्कुल. यहाँ. Yes, sir. तो अच्छा, कैन एनीवन जस्ट लेट मी नो कि मॉर्टल्स यहाँ पे क्या है? ये मॉर्टल क्या चीज है? Sir people के बारे में भी human beings जो Living beings जो हैं. living beings. मॉर्टल यानी Sir, फानी, living तो things इंसान के इज अ फानी थिंग. Yes, So sir. Man is a usually- mortal. हाँ, मैन इज मॉर्टल. तो ये जो है ना Few models. एक इसको कहते हैं यूफेमिज्म. यूफेमिज्म कहते हैं किसी भी नाम को थोड़ा पोलाइट तरीके से कहने को हम
यूफेमिज्म कहते हैं, तो वो बस उसका एक लिटरेरी अंदाज है, अदबी तरीका है इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद एक दूसरा लफ्ज इसमें जाहिर है कि रेजिमेंट है, तो रेजिमेंट जो है वो किसी भी खास किस्म के प्रोग्राम को कहते हैं। तो यहाँ पे उससे मुराद वो रिजीम भी सेंस में है, लेकिन असल में ये प्रोग्राम है, यानी एक पैकेज समझ लो इसको, पैकेज। तो किसी गवर्नमेंट को भी एक्चुअली पैकेज समझा जाता है कि उसमें ये चीजें ऑफर हो रही हैं। तो यहाँ पे कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड जो आपका पैकेज होता है उसको रेजिमेंट कहते हैं। सो फ्यू मॉर्टल्स कुड स्टिक, कि बहुत कम लोग इसके साथ पाला जो है ना उनका पड़ेगा, तो बहुत कम लोग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। सो बस इसका मतलब है कि ऐसा है, यानी ये बात सही है, बस बात खत्म हो। सो कुड, यानी कुड से मुराद यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, तो वो लाइकली, ठीक है। अच्छा, और कुड पहले एक सेंटेंस में कुड आया था इसके लिए, मैं के लिए, जो पिछले सेंटेंस पैराग्राफ का आखिरी सेंटेंस था। अगर आप इस सवाल को देखें तो ये सिमिलर चीजें हैं पॉसिबिलिटीज वगैरह के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 को जरा पढ़िए कि इसमें लिखा है कि डाइट रिलेटेड डिजीजेस आर कॉमन इन ओल्डर पीपल। तो यहाँ पे सबसे इजी बात जो है ना वो आपका है ओल्डर पीपल। इससे बेहतर कोई हमारे बस की वर्ड नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के अंदर, तो इजी है। हाउएवर यहाँ पे फिर डिजीजेस का लफ्ज भी एक ऑब्वियस वर्ड है, तो हम वहां से आगे देखेंगे कि डाइट रिलेटेड डिजीजेस और ओल्डर पीपल, और फिर मीनिंग याद रखने के लिए कॉमन को याद रखना कि वो चीज उनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। लेट्स सी एंड कंफर्म। तो अभी हमें आंसर यहाँ से मिला था, तो अब यहाँ से आगे देखेंगे कि जो डिजीजेस और ओल्डर पीपल का जिक्र कहाँ पे आ रहा है। ढूंढें सर, यहीं से आगे। डायबिटीज की बात हो रही है, हार्ट डिसीज, कैंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पोस्टपोनिंग एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स। हाँ हाँ। तो अब इसके अंदर जो अभी एक एंगल से देखें तो सवाल में हमने ये कहा था कि डाइट रिलेटेड डिजीज भी होनी चाहिए, ओल्डर पीपल में होनी चाहिए, और ओल्डर पीपल में कॉमन होनी चाहिए। तो हम उस एंगल से देख रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इट enable people to stay healthy longer, कि ये काफी अर्से लोगों को हेल्दी रखती है। पोस्टपोनिंग एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कि इससे क्या होता है कि एज से मुतालिक जितने मसाइल आते हैं, जैसे कि डायबिटीज है और ये पता नहीं किस किस्म की बीमारी है, एंड हार्ट डिजीज एंड कैंसर है, ये डिले होते हैं अनटिल वेरी लेट इन लाइफ। तो ये जिंदगी में काफी अर्से डिले होते हैं। तो यहाँ पे आगे ढूंढेंगे कि क्या अगले सेंटेंस में कहीं पे ओल्डर लोगों के अंदर कॉमन होने की बात है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं कहा है इन्होंने। अगले सेंटेंस को भी पढ़ लें ताकि कंफर्म हो सके कि ये क्या है। सर कहाँ से, कैंसर से आगे पढ़ना है? जी जी, जहां तक इस सेंटेंस का इख्तिताम हुआ बिल्कुल वहीं से आगे ही पढ़ेंगे। तो Until very late in life, scientists first posed this question in the mid-1990s after researchers came upon a chemical agent that in rodents seemed to reproduce many of caloric restrictions benefits. No compound that would safely achieve the same feat in people has been found yet, but the search has been informative and has faint hope that caloric restriction mimetics can indeed be developed eventually. तो इस पूरे के अंदर कहीं पे भी एल्डर पीपल की बात हो रही है कहीं पे? नो सर। नहीं सर, नहीं सर। तो इसका मतलब है कि आधी इंफॉर्मेशन तो है, बाकी नहीं है। सो ये वाला ऑप्शन नॉट गिवन। नॉट गिवन। ऑलराइट, ये आखिरी क्वेश्चन भी देख लें। इन एक्सपेरिमेंट्स रैट्स who ate what they wanted led shorter lives than rats on a low caloric diet। यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पता चला कि वो रेट्स जिन्होंने वो ईट किया, जो खाया जो चाहते थे, वो कम जिंदगियां जिए उन लोगों ने एज कंपेयर टू दोज रेट्स की जो लो कैलोरिक डाइट पे थे। तो कंपैरिजन है और आसान तरीका है कि जहां पे रेट्स को कंपेयर किया गया है वहां जाके देख लेंगे। तो जहां अभी आंसर मिला है वहां से आगे जाके रेट्स को ढूंढते हैं तो आंसर मिलेगा। सर रोडेंट्स का जिक्र किया था ना उसने? क्या जिक्र किया था? सॉरी,
सर रोडेंट्स का। किस क्वेश्चन की? आप पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? हैं? आप सर रेड यानी को इस इंग्लिश में सर इसको रोडेंट्स भी कहते हैं ना, चूहों को। रोडेंट्स असल में तमाम किस्म के छोटे जानवरों को रोडेंट्स कहा जाता है, खास तौर पे इन रेट्स वगैरह को भी और इस तरह के जितने मैमल्स हैं। लेकिन रेट्स का जिक्र कहाँ पे हुआ है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने अभी कहीं पढ़ा है? अच्छा, ये पिछले पैराग्राफ में यहाँ पे बात हुई है। हाँ, रोडेंट्स लिखा हुआ था सर वहाँ पे। लेकिन ये देखना कि इनमें कंपैरिजन है कोई? नहीं सर। नहीं है। तो सर अभी और दूसरी बात नेक्स्ट ये, पैराग्राफ थर्ड लाइन सर, नेक्स्ट हाँ, तो पैराग्राफ आगे में हम थर्ड लाइन में एन एवरेज नेक्स्ट इन में द है। फीडिंग रैट्स। जी हाँ, यहाँ पे रेट्स की बात हो रही है और उनकी फीडिंग की बात हो रही है। तो मैं एक्चुअली उसी पे आता है कि आगे हम ढूंढते जाएंगे, जहां मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब यहाँ पे हमें मिल गया है, तो अब हम देखें क्या वहां पे कंपेयर किया गया, और कंपेयर किया गया तो क्या वो बात सही है कि जो रेट्स इंडिपेंडेंटली खा रही थी उनकी जिंदगियां कम थी एज कंपेयर टू द अदर्स? यस सर। यस सर। तो कहा साइंटिस्ट रेट्स रिकॉग्नाइज, फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि हाँ कि रेट्स फेड लो कैलोरी डाइट लिव लिव लॉन्गर। लॉन्गर। हाँ जी, ठीक है। तो लॉन्गर ये एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव होगा तो लॉन्गेस्ट, तो कंपेयर करने के लिए तो लॉन्गर है। सो बस कंपैरिजन हुई है, लिहाजा आंसर है यस। ओके, अब यस नो नॉट गिवन भी आपने देख ली। बिल्कुल ट्रू फॉल्स नॉट की तरह से ही ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, तो खास बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में आंसर को ट्रू ही कहना, यस न कहना, एंड वाइस वर्सा। अब उस क्वेश्चन टाइप पे आते हैं जिसके लिए मैं ये पार्ट सिलेक्ट करके लाया हूँ। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन जी, हो रही है कि ये जो यस नो के आगे जो स्टेटमेंट है, हमने उसमें से किसको देखना है? मैंने वो क्वेश्चन सही करके रीड नहीं किया सर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट को देखना है, सेकंड को, थर्ड को? ये क्या है? मतलब यस के आगे ये वाली बात कर रही हैं आप? यस सर, मुझे इसकी समझ नहीं ये आ आपको, ये असल में वो आपके रिमाइंडर दे रहे हैं, यानी रिमाइंडर इस तरह, जैसे मैंने अभी कहा कि यस कौन से क्वेश्चन को हम यस कहेंगे। हमने कहा कि जो उसी क्वेश्चन में उसी तरह की इंफॉर्मेशन हो जैसे टेक्स्ट के अंदर है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हो। तो अब यहाँ पे यस के आगे लिखा है कि इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर, तो वो यस है। अगर इफ द स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट्स, यानी टेक्स्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है या क्लेम है राइटर का, उसके साथ ये सवाल कंट्राडिक्ट करेगा, ऑपोजिट इंफॉर्मेशन आएगी, कंट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम उसको नो बोलेंगे। और अगर ये कहना मुमकिन ना हो, यानी कि नहीं यस कहा जा सकता है और नो क्योंकि पूरी बात नहीं है, तो उसको नॉट गिवन। ये एक्चुअली उन्होंने आपको हेल्प करने के लिए लिखा है। यस सर, समझ आ गया। अभी मैंने पढ़ा नहीं था वो पूरा, तो मुझे नहीं समझ आई थी। ठीक है। और ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के सामने भी ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो हमेशा एक रिमाइंडर होता है कि अच्छा स्टूडेंट कहीं अगर भूल भी गया हो तो उसको याद रहेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ओके, अच्छा, ये क्लियर है? यस सर। सर ओके। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन टाइप के लिए एक्चुअली मैं यहाँ था बिकॉज कल आप लोगों ने कहा कि जो एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें कुछ प्रॉपर नाउन्स थे जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमने मैच करना था, तो आप लोगों ने सवाल पूछा था कि अगर प्रॉपर नाउन्स ना हो तो क्या किया जाए। वैसे तो जाहिर है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेसिक बात ये है कि उनके अंदर से हम कीवर्ड्स उठा के जाते हैं, लेकिन अगर ये जवाब दिया जाए स्टूडेंट को कि बस आप कीवर्ड्स उठा के जाएं, तो फिर वो जहन में शुबा बाकी रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको परफॉर्म करते हैं ताकि आपके जहनों से ये डाउट निकल जाए कि इसको कैसे करना है। अब आप देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन 3 कैटेगरीज हैं, तो या तो कोई कैटेगरी होगी या प्रॉपर नाउन होगा। मतलब चुपचाप कोई भी बात तो नहीं होगी, मतलब कोई ना कोई कैटेगराइजेशन होगी, तब वो ऑप्शन बनता है। जो इसके अलावा है वो आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, जो हमने कल भी किया था, जो हम कल दोबारा करेंगे एक ऐसे के टाइटल वाले और आइडेंटिफाइंग वाले के साथ। अब इसमें देखें कि 3 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस कम है, सवाल ज्यादा हैं। जैसे कल थे, कल हमारे पास कुछ नाम थे ऑलमोस्ट बराबर थे सवालात के साथ, तो अब हमने सवाल को समझना है और हमें मालूम होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन रैंडम आएगी। जैसे कल भी हमने एक्सपेक्ट रैंडम किया था और वो बाय चांस एक हद तक सीक्वेंस था, ऑल्दो एक आंसर शुरू के किसी पैराग्राफ में था और बाकी आंसर्स
बाद के किसी पैराग्राफ में थे और उसमें भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ था। अगर याद हो तो उनमें से एक क्वेश्चन जो है उसका 34 या 33 जो बाद में आ रहा था उसका आंसर जो है वो पहला नाम आ रहा था ए, यानी एक आंसर उस सीक्वेंस के पहले वाले में था, रैंडम था, लेकिन बहरहाल उसके बाद बाकी वाले किसी हद तक सीक्वेंस में भी नजर आ रहे थे, लेकिन बहरहाल रैंडम था, सारे सवाल ट्रेंड में नहीं थे। इसी तरह यहाँ पे भी अगर ये इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ में हो तो भी रैंडम होने के चांसेस हैं, दो पैराग्राफ्स में हो तो भी रैंडम होने के चांसेस हैं, पूरे टेक्स्ट में फैला हुआ हो तो भी रैंडम होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते ही रैंडम हैं। तो अब सवाल को समझते हैं, कोई प्रॉपर नाउन नजर नहीं आ रहा, तो अब सवाल ये है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एज रिलेटिंग टू ए, बी और सी, कि ये इंफॉर्मेशन सही है सारी, जैसे कल वाली इंफॉर्मेशन सारी डेफिनेशन सारी बातें सही थी। अब हमने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल मंकीज वर लेस लाइकली टू बिकम डायबिटिक, यानी कौन से मंकीज थी कि जो लेस लाइकली थी डायबिटिक होने से, जिनके बारे में ये इम्कान कम था कि ये डायबिटिक होंगी। तो अब क्या वो कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज थी, क्या वो कंट्रोल मंकीज थी, या वो उन दोनों में से कोई भी नहीं थी? तो अब कुछ क्वेश्चंस में ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रेड्स की बात चल रही थी, समटाइम्स वो जो लफ्ज है मंकी का वो डायरेक्ट आ भी सकता है और मुमकिन है कि उसकी तरफ कोई यूफेमिज्म रेफर हुआ हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बात की रेड्स की, तो आप लोगों ने रोडेंट का वर्ड जो है वो रेफर किया कि रोडेंट का वर्ड यूज हुआ है, जो आपने कहा कि ये मुमकिन है कि रेड्स के लिए इस्तेमाल हो। तो उस तरह की पॉसिबिलिटी भी है। समटाइम्स उसको सिर्फ एनिमल कहा जा सकता है, समटाइम्स उसको मुमकिन है कि मंकीज की किसी खास स्पीशी का नाम दिया जाए। तो एक्सपेक्ट हमेशा मत करना कि वो एग्जैक्ट नाम आएगा, तो हम हमेशा ही पैराफ्रेजिंग को सोचेंगे अनलेस एंड अनटिल वहां पे कोई प्रॉपर नाउन हो। यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है। तो अब हमने अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन टाइप पहले किया है और एक क्वेश्चन टाइप अभी हमने करना है और एक ये वाला है। तो जहां जहां पे भी रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रही आप लोगों से कि ये कब करने हैं, जब बाकी सारे क्वेश्चंस हो चुके हों, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ पे किस किस्म की इंफॉर्मेशन है। अभी इन पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए हमें ऑलमोस्ट आइडिया हो चुका है कि शुरू के 3 पैराग्राफ्स में किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम बाकी पैराग्राफ से भी जान पहचान बना लेते हैं, हेलो हाय कर लेते हैं, फिर इधर आएंगे। इसके लिए हम आगे जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। जो आखिरी क्वेश्चन है जो फ्लो चार्ट का, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे शक्ल से ऐसा लग रहा होता है कि शक्ल से खतरनाक लगता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। तो वो जो बंदा है हाउ अ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक वर्ड्स का टाइटल पढ़ लेता है कोई भी स्टूडेंट, तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि टाइटल है तो मसला नहीं है। अगर टाइटल नहीं हुआ तो कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, कोई भी क्लियर वर्ड होगा, कोई भी नंबर होगा जो आपको लेके जाएगा आपके टेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे फिर हमें करनी पड़ती है स्किमिंग। स्किमिंग कैसे करते हैं, यानी हल्का फुल्का देख लेते हैं कि यार इस किस्म के प्रॉपर नाउन्स कहाँ पे हैं, इस किस्म के कोई टाइटल कहाँ पे है, इस किस्म के नंबर्स कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइटल है हाउ अ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिमेटिक वर्क्स। तो अब हमने टेक्स्ट तो अभी पहले पढ़ा भी है थोड़ा सा, और टेक्स्ट को पढ़ते हुए हमने मिमेटिक का वर्ड पहले देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पूरे टेक्स्ट में इस किस्म के वर्ड्स होंगे। तो वो कौन सी चीज है जो हमारे क्वेश्चन को हमारे लिए इजी बनाएगी, वो है CR मिमेटिक का लफ्ज, जो कि अलग से इन्होंने यूज किया है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को वो बना के, अपना एब्रिविएशन बना के। तो इसका मतलब है कि अंदर भी ऐसे यूज हुआ होगा, प्लस ATP, वो भी आप देख रहे हैं कैपिटल में है। और ये बात कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ कीवर्ड्स तो होंगे। तो अब यहाँ पे लेस डैश इज प्रोसेस्ड और फ्यूअर डैश आर इमिटेड, सेल्स फोकस ऑन डैश, और यहाँ पे 2 थ्योरीज हैं। तो हमें समझ ये आ रही है कि जो भी काम हो रहा है यहाँ पे इस आइडिया के अंदर, उसके लिए 2 थ्योरीज हैं, यानी 2 एक्सप्लेनेशंस हैं या 2 फिलोसफीज हैं। तो हमने पहले ये देखना है कि ये काम होता कैसे है, हाउ की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी। तो 3 चीजें आ गई, एक तो टाइटल,
दूसरा अंदर हमारे पास दो प्रॉपर नॉन्स की तरह से क्लियर वर्ड्स हैं, कैपिटलाइज्ड वर्ड्स हैं, एक है सीआर मिमेटिक, दूसरा है एटीपी। तो अब एटीपी, सीआर मिमेटिक और हाउ के लफ्ज को जहन में रख लें, हम अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अभी अगर आपने नेचुरल एक प्रोसेस देखा हो तो शुरू के क्वेश्चंस के आंसर शुरू के 2-3 पैराग्राफ्स में खत्म हो गए। इसका मतलब ये है कि अगले पैराग्राफ्स में इनका आंसर ढूंढना चाहिए नेचुरली, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी टेक्स्ट में सारे के सारे आंसर शुरू के 2-3 पैराग्राफ से आए। सो नेचुरली हम इसके बाद वाले पैराग्राफ्स को ढूंढेंगे सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए। हम सिर्फ लोकेट कर रहे हैं, आंसर अभी ढूंढ नहीं रहे। हम सीआर मिमेटिक, एटीपी और हाउ कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन वर्क्स को ढूंढेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी थी। तो इस पूरे में बेनिफिट्स आ रहे हैं जनाब, बेनिफिट्स की बातें हो रही हैं। तो बेनिफिट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स का आखिरी पैराग्राफ है और उसके बाद ये आप देख लें। उसके बाद एक एंगल से हमने देख लिया। अब किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई मुमकिन है किसी टेस्ट में हेडिंग ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये देखें, एटीपी सारा इधर है, इससे ऊपर इसकी कोई कहानी नहीं थी। हाँ, सीआर मिमेटिक तो इसलिए क्योंकि वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वो थ्रू आउट था। अब यानी कोई ऐसा टेस्ट नहीं हो सकता कि जिसमें कोई रेफरेंस के लिए कोई आपको कीवर्ड ना मिले। ऐसा टेस्ट हो ही नहीं सकता कि जिसमें कोई ऐसा लफ्ज ना हो जो गाइडिंग स्टार की तरह ना हो, जो लाइट हाउस की तरह ना हो। मीनारा नूर नहीं होता जैसे बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि वो समंदर के किनारे एक लाइट हाउस होता है और किश्तियां उसकी लाइट को देखते हुए आती हैं पुराने स्टाइल में। तो ऐसे आपको बहुत सारे लाइट हाउस हर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने ये जहन में बिलीफ बना लेना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कोई आंखों में पट्टियां बांध के फेंक दे कि चलो भाई निकालो रास्ता। तो कीवर्ड्स मिलेंगे। चलो, अभी हमें पता तो है कि यहाँ पे आंसर है। अब हमारे पास कितने पैराग्राफ्स हैं? ओके, 2 पैराग्राफ्स हैं, इनके अंदर से हम आंसर ढूंढेंगे। अब इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर सीक्वेंस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर इधर और अगले का इधर भी आ सकता है। सो लेट्स नाउ गो एंड रीड द क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली वेस्टिंग आवर टाइम। सो पहला क्वेश्चन क्या है? अब बाकी चीजें छोड़ दें, ये देखें कि सीआर मिमेटिक के अंदर कौन सी चीज प्रोसेस कम होती है। लेस डैश इज प्रोसेस्ड। अब लेस एडजेक्टिव है तो कोई नाउन आएगा, कोई नाम आएगा। और यहाँ पे ये एटीपी डिक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के डिक्रीज होने से पहले ही ये बात गिवन है कि भाई कौन सी चीज है जो कम प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने का मतलब ये है कि गो फॉरवर्ड होना, प्रोसेस होने का मतलब ये है कि एंटर होना, प्रोसेस होने का मतलब ये है स्टार्ट होना, प्रोसेस होने का मतलब ये है मूव करना, प्रोसेस होने का मतलब ये है कि डेवलप होना वगैरह वगैरह। ये सेंसेस हैं। तो अब कौन सी चीज कम, लेस की जगह पे मिनिमम का वर्ड आ सकता है, फ्यूअर का वर्ड आ सकता है, माइनॉरिटी का वर्ड आ सकता है। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से ढूंढना है, क्योंकि सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन टाइप्स आएंगे तो आपने अपने जहन को वाइड ओपन रखना है। ओके, चलें देखें। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इसमें कौन सी चीज है जो कम प्रोसेस होती है, यानी कम आगे बढ़ती है या कम चलती है या कम है किसी न किसी तरह, या रिड्यूस है, मिनिमाइज्ड है, रिडक्शन है उसके अंदर, डिक्रीज्ड है। सेकंड पैराग्राफ में एक रेफरेंस है, caloric restriction minimizes the amount of glucose entering cells and decreases ATP generation. वो अब देखें कि एंटरिंग सेल्स यानी प्रोसेस होना, आगे बढ़ना, और रिस्ट्रिक्शन, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिनिमाइजेस, उसको मिनिमाइज करती है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मिनिमाइज करने का मतलब कम करती है एंटर होने को, प्रोसेस होने को। किस चीज के प्रोसेस होने को कम करती है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। तो अभी फिलहाल तक तो हमारे पास आंसर क्या है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, बल्कि कहेंगे द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं
कि हमारे पास नो मोर देन 2 वर्ड्स की इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि प्रीपोजिशन को हटा के सिर्फ नाउन रख दें, अमाउंट ग्लूकोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आंसर है उसको पैराफ्रेज नहीं करना, उसको रीफॉर्मुलेट नहीं करना। तो अब अगर हम अमाउंट को हटाएंगे, क्योंकि 3 वर्ड्स हैं या 4 हैं, द अमाउंट को हटाएंगे तो अब 2 वर्ड्स रह जाएंगे, ऑफ ग्लूकोज, तो लेस ऑफ ग्लूकोज तो हो नहीं सकता, सेंस नहीं बनता, तो ऑफ को भी ड्रॉप करेंगे तो आंसर बनेगा लेस ग्लूकोज। तो यहाँ पे उसूल ये याद रखना कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी गैप फिलिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वंस यू आर डन विद फिलिंग दैट पर्टिकुलर गैप, आपका जो फ्रेज है या सेंटेंस है या क्लॉज है, इट शुड मेक सेंस, नॉट ओनली लॉजिकली बट ऑल्सो ग्रामेटिकली। तो लेस यानी चुपचाप स्टूडेंट्स जो है ना वो लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कहते हैं कि कोई बात नहीं, 2 वर्ड्स कहा था मैंने 3 लिख दिए तो अच्छी बात है, मैंने ज्यादा लिख दिया तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए। तो मींस कि हमने उस फ्रेज में से जो नाउन होगा जो उस नाउन को लेके उधर पुट कर देना है। हाँ, तो इस नाउन से भी ज्यादा मैं इसको वो स्टाइलिस्टिक्स की जुबान में कहते हैं ना हेड नाउन। हेड नाउन वो होता है जिसको हटाने से मीनिंग खराब हो जाती है, खराब हो जाता है जैसे। हाँ, तो इसलिए अमाउंट खुद भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो एक्चुअल नाउन था, बिल्कुल। अच्छा, सो बिल्कुल आप लोग सही समझ में इसको, ऐसा ही है। तो अब आंसर 1 मिल गया। अब अगले पे जाने के लिए देखते हैं कि 39 क्या है। सेल्स लेस डैमेज्ड बाय डिजीज। अब यहाँ पे देखें कि बात आ रही है डिजीज की, तो मुमकिन है कि उस हवाले से कोई चीज हमें देखनी पड़े। और आगे लिखा है बिकॉज फ्यूअर डैश आर इमिटेड। देखें फ्यूअर यानी कम। अभी पहले भी हमने ऊपर भी बात की थी कि रिड्यूस्ड, मिनिमाइज्ड, हाँ जी, यू नो फ्यूअर, लेस, उस तरह से कुछ एडजेक्टिव, उसी तरह का एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एमिट का लफ्ज जब आपके जहन में आता है तो आप देख रहे होंगे मतलब कोई चीज रिलीज हो रही है कहीं से, हो जाना। हाँ, तो ये उस सेंस में आ रहा है। तो बस इस बात को जहन में रख लो, तो अभी आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि कौन सी चीज है जो कम तादाद में एमिट हो रही है, यानी कम तादाद में निकल रही है, कहीं से कम तादाद में चल रही है। तो सेल्स लेस डैमेज बाय डिजीज, यानी कि जो सेल्स हैं वो डिजीज से कम डैमेज होंगे, क्योंकि एक चीज है जो कम तादाद में निकल रही है। बेशक 10 मिनट लगा लो, ये आपके सामने स्क्रीन में जो टेक्स्ट नजर आ रहा है इसी में आंसर है, आराम से देख लेना। सीक्वेंस एक्सपेक्ट मत करना, अभी अभी आएगा, अभी थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि आप फोन से होंगे, बस अभी नजर आएगा। सीक्वेंस एक्सपेक्ट मत करना, मैंने पहले ही कहा कि ये रैंडम ऑप्शंस वाले हैं। सर ये यहाँ से तो नहीं आ रहा। वन पॉसिबिलिटी रिलेट्स टू द एटीपी मेकिंग मशीनरीज एमिशन ऑफ फ्री, कहाँ गया, कहाँ से पढ़ रही फ्री रेडिकल्स। यहाँ से है, यस सर, पढ़े एमिशन यहाँ पे हो रहा है ना, एमिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स व्हिच आर थॉट टू कंट्रीब्यूट टू एजिंग एंड सच ए तो एमिशन किस चीज की है? वन पॉसिबिलिटी रिलेट्स टू द एटीपी मेकिंग मशीनरीज एमिशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। हाँ, तो अब one possibility relates to ATP making machinery's emission of free radicals, के free radicals की emission। तो अब सवाल ये है कि ये कम कैसे है, तो आप आगे पढ़ें कि ये कम है कि नहीं, उसको देखने के लिए which are thought to contribute to aging and such age disease as cancer by damaging cells। तो डिजीज वाली बात भी आ गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ये कम रिलीज होते हैं कि नहीं। तो आगे पढ़ने से पता चलेगा कि reduced operation of the machinery should limit their production and thereby constrain the damage। तो वो बात भी आ गई, बिल्कुल। सो आंसर क्या है? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, हाँ। तो सिंगुलर प्लूरल का भी ख्याल रखना। अब 2 वर्ड्स हैं और दोनों सेंस बनाते हैं, सो दोनों वर्ड्स लिखेंगे।
और इनसे फिर हम सिर्फ रेडिकल्स लिखने से आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्ड्स अलाउड हैं तो फ्री रेडिकल्स। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 वर्ड अलाउड होता तो फिर हम लिख लेते रेडिकल्स और फ्री को Radicals. ड्रॉप करते। जी हाँ। अच्छा, नेक्स्ट आखिरी देख लें। सेल्स फोकस ऑन डैश बिकॉज फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई। तो अब यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उनको देख लें। क्या वर्ड्स आपके ख्याल में कीवर्ड्स हैं इस सवाल के अंदर? शॉर्ट सप्लाई, फूड, शॉर्ट सप्लाई, फूड और Cells. Cells. Focus. पॉसिबिलिटी। वन पॉसिबिलिटी वो ठीक है। सो अब सिनोनिम्स किस तरह के आ सकते हैं? अभी मैं आपसे अगर पूछ सकूं, मैं इस टेस्ट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, किसी भी टेस्ट में मतलब वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि नहीं वो मुझे समझ आएगी ना। शॉर्ट सप्लाई की जगह पे क्या क्या लफ्ज आपके जहनों में आ रहे हैं? सोचें। Limited supply. सर लिमिटेड, लिमिटेड सप्लाई बिल्कुल हो सकता है, Reduced. करेक्ट। लेस सप्लाई, जी। और सर गूगल करके बताएं। आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई में कुछ ना कुछ स्टॉक तो होता है। सप्लाई ये हो सकता है, मतलब वो फिर फ्रेज काफी लेंथी होगी, मतलब हाँ, मतलब एक सेंस दे सकता है वो। बस ठीक है, मतलब एक विजन आपके जहनों में आपको ख्याल आ रहा है ना कि अच्छा इस किस्म की वोकैबुलरी पॉसिबल है, ठीक है बस। ओके, चलें जाके देखते हैं कौन सी चीज कम है। सेल्स फोकस ऑन डैश बिकॉज फूड इज इन शॉर्ट सप्लाई। कि सेल्स किस चीज पे फोकस करते हैं? फोकस करने का मतलब जा रहा है कि सेल्स फोकस करेंगे तो कुछ एक्टिविटी से रिलेटेड ही फोकस करेंगे। तो वंस अगेन मैं आपको वैसे रिमाइंडर देना चाहता हूं कि सीक्वेंस एक्सपेक्ट मत करना। पहले में मैंने भी ये कहा था और सीक्वेंस था, मैंने किसी वजह से कहा क्योंकि सरप्राइजेस मिल सकते हैं ना टेस्ट में। सर ये आपका ये पूरा सही रीड नहीं होने हो रहा। सर ये आपका मोहम्मद उवैस मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर शो हो रहा है। एक अभी हो रहा होगा, मैंने थोड़ा उसको ड्रैग किया है। जी सर हो रहा है। Processing of glucose could indicate to cells that food is scarce. यहाँ से सर आंसर कहीं मिलेगा। Another hypothesis suggests that decreased processing of glucose could indicate the मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। to cells that food is हाँ, scarce. स्केर्स Reduced जो है वो Scarce, बिल्कुल उसी सेंस में है। shortage स्कार्स जो है ना वो उनको कहते हैं ना सर वो समझ आ गया। खराश या दाग वगैरह, वो SCARS स्कार्स। ये स्केर्स जो है ना वो जो चीजें कम होती हैं, शॉर्ट सप्लाई, इस तरह की चीजें। तो क्या आंसर आप लोगों के ख्याल में आ रहा है? फोकस से रिलेटेड कोई वर्ड होगा ना, सवाल में यही था आई थिंक। हाइपोथेसिस है। देखिए, फोकस से रिलेटेड पहले वर्ड ढूंढें तो शायद आसान हो। फोकस किस चीज पे करती हैं? सेल्स फोकस ऑन डैश था ना। Emphasizes. इंडिकेट। हाँ इंडिकेट तो आइडेंटिफाई करना हुआ एक तरह से, लेकिन जो फोकस है उसके लिए एम्फसाइज का वर्ब जो है वो बेहतर है। प्रिजर्वेशन होगा फिर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, प्रिजर्वेशन इज आंसर। एम्फसाइजेस प्रिजर्वेशन of the organism over such luxuries as growth and reproduction. So
cells focus on preservation because food is in short supply. Sense बन रहा है कि नहीं बन रहा? Yes, sir. So बस ये काम करना होता है गैप फिलिंग में. अब हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है. हमें शुरू के 3 पैराग्राफ्स और आखिरी 2 पैराग्राफ्स की पहचान है. तो अभी एक बात तो समझ आ गई होगी कि अभी तक कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें हमने कभी कोई सवाल के जवाब नहीं दिया. सो अब मुमकिन है कि यहाँ इनके जवाब वहाँ मिले. तो ये हर टेक्स्ट में आपने होश में रहना है. यानी कभी कभार स्टूडेंट्स जो है ना वो आंसर्स को क्वेश्चंस को आंसर कर चुके होते हैं और दोबारा उन्हीं पैराग्राफ्स में दोबारा जा रहे होते हैं क्योंकि वो कॉन्शियस होते ही नहीं कि हमने देखा कहाँ पे. हर दूसरी मरतबा वही पैराग्राफ ढूंढते जा रहे हैं. तो टाइम को बचाने के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन से पैराग्राफ्स को हमने नहीं पढ़ा. मुमकिन है कि वहां पे इजीली मिल सके तो पहले उनको देखना चाहिए. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि किन पैराग्राफ्स के अंदर कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज, कंट्रोल मंकीज की बात हो रही है, डायबिटिक होने की बात हो रही है, क्रोनिक डिजीज की बात हो रही है और हार्ट डिजीज की बात हो रही है, इंसुलिन की बात हो रही है. ये हर सवाल में मैंने जैसे पहले कहा कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे. प्रॉपर नाउन ना भी हो, कोई वर्ड ऐसा जरूर होता है कि जो आपको गाइड करेगा. तो यहाँ पे जो गाइडिंग स्टार्स हैं आपके वो हैं इंसुलिन. हम पहले ही आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि ये आंसर्स हैं कहाँ पे. इंसुलिन को याद रखना, हार्ट डिजीज को याद रखना, बाकी तो खास नहीं है. क्रोनिक डिजीज को याद रखना, डायबिटिक को याद रखना और मंकीज को याद रखना. जाके देखते हैं. शुरू के कुछ पैराग्राफ्स को हम देखे हुए इसलिए उनको नहीं देखेंगे. यहाँ से आगे इनमें पहले ढूंढें. यहाँ पे इस पेज में जो नजर आ रहा है इसमें ढूंढें. मिले तो मुझे बताना, ना मिले तो आगे बढ़ते हैं. अभी बहुत जगह है. मंकीज का रेफरेंस है बट इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है. लास्ट पे बिल्कुल रेफरेंस किया है उन्होंने. तो वहां पे वो क्या कह रहे हैं कि बट कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन प्रोजेक्ट्स अंडरवे इन 2 स्पीशीज मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस. जाहिर है कि ये उसी किस्म के ऑर्गेनिजम्स की बात उन्होंने एग्जांपल के तौर पे लिया होगा, क्योंकि जाहिर है कि जो इंसानों की तरह के होंगे. उसके बाद वो कौन से हैं? रीसस एंड स्क्विरल मंकीज कि कुछ मंकीज हैं, कुछ टाइप्स हैं, हैव साइंटिफिक ऑप्टिमिस्टिक दैट सीआर नोटिस कुड हेल्प पीपल. तो अब इसका मतलब है कि अभी उनको इंट्रोड्यूस कराया गया है कि ऐसा कुछ है, तो वो तफसील इसके बाद ही आएगी. तो हम आगे जाके देखते हैं. अब यहां से आगे तो हम पहले देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे आंसर यहाँ पे हैं. तो अब हमें पता चल गया कि आंसर यहाँ पे हैं. अब बाकी सारी चीजों को भूल जाएं, टेंशन न लें, सीधे जाके हम क्वेश्चंस को पढ़ के आते हैं. बस अब ये काम रह गया है. तो अब क्या करेंगे कि जो भी हमारा क्वेश्चन इजीएस्ट तरीके से फाइंड आउट हो सके. मिसाल के तौर पे हम सबसे इजी लफ्ज यहाँ पे इंसुलिन है, जो मतलब इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है इंसुलिन का वर्ड, क्योंकि इंसुलिन की जगह पे कोई और लफ्ज नहीं लिख सकता कोई. तो चलें जाके देखते हैं कि कहाँ है और सवाल याद करके आना. सर लिख भी सकते हैं. हाँ, अगर लिख सको तो अच्छी बात होगी. क्या सर क्या क्या कि दोबारा में सर इंसुलिन की जगह पैनक्रियाटिक हार्मोन नहीं लिख सकते? जार्गन नहीं आएगा. यानी आपको बायोलॉजी का एक्सपर्ट होने की डिमांड नहीं है, इसलिए जार्गन नहीं यूज होगा. जार्गन कहते हैं किसी भी फील्ड की अपनी पर्टिकुलर रजिस्टर. तो वो अगर आई भी तो वो जनरलाइज्ड फॉर्म में होगी. उसको न जानने की वजह से आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा. तो मेरा ख्याल है कि आप प्री मेडिकल पढ़ के आए हुए हो बच्चे हैं. बदकिस्मती से सर. हाँ, एक्चुअली कोई खुश नहीं है, इंजीनियर्स भी रो ही रोते हैं. खैर, अच्छा, अब इंसुलिन का लफ्ज ढूंढ सकते हैं. अगर लेट्स से आपके ख्याल के मुताबिक ऐसा अगर हो भी, तो आपको पता है ना पहले से, तो फिर टेंशन किस बात की. लेकिन
ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा जो टिपिकल वोकेबुलरी होती है वो नहीं चेंज होती, डोंट वरी अबाउट इट। और इंसुलिन का वर्ड है, अब हार्ट डिजीज की जगह पे कोई और वर्ड आ सकता है, मतलब ये बात समझने की है कि हार्ट डिजीज जो है उसकी जगह पे अभी ये जार्गन नहीं है तो इसकी जगह पे एक जार्गन, जैसे इंसुलिन जो है वो खुद जार्गन है तो इसकी जगह दूसरा जार्गन नहीं आ सकता। वैसे इस टेस्ट में हार्ट डिजीज को नहीं चेंज किया गया, लेकिन हार्ट डिजीज की जगह पे कोई भी वर्ड हो कार्डियक सकता है जो कार्डियक कार्डियक डिजीज। अरेस्ट से रिलेटेड या कार्डियक डिजीज के हिसाब से जो बिल्कुल हो सकता है कार्डियक दिल से रिलेटेड है। तो बहरहाल यहाँ पे वो हुआ भी नहीं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जार्गन नहीं आता। खैर इंसुलिन हार्ट डिजीज वगैरह हम ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इस बात पे कंफ्यूजन होती हो कि यार ये क्या है, तो पहले क्वेश्चन से आए, लेकिन वहां पे भी आखिरकार हमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं। तो उसूल ये है कि कोई सवाल बेसहारा नहीं रखा जाता। बहरहाल इंसुलिन पे आ जाते हैं और जाके देखते हैं। मंकीज प्रोड्यूस्ड ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ इंसुलिन, कहाँ पे इंसुलिन ज्यादा किन मंकीज ने प्रोड्यूस किया? इंसुलिन ढूंढने इसमें। Sir, first paragraph, third line, first word. पढ़ें क्या लिखा है। जी जी पढ़ें। Caloric restricted monkeys have lower body temperatures and level of the pancreatic hormone insulin, and they retain more youthful levels of certain hormones that tend to fall with age. तो अब ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड मंकीज जो हैं उनमें लोअर लेवल्स ऑफ इंसुलिन है। इन अदर वर्ड्स सवाल में क्या पूछा गया था, ग्रेटर किस में है? तो अगर कैलोरिक sir. रिस्ट्रिक्टेड में लोअर हैं तो इनके ऑपोजिट वालों में क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। Yes, sir. ऐसा ही है। तो कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड ए था तो हमारा आंसर आ गया बी। Sir, but ऐसा भी तो हो सकता है कि एक हमारे पास ऑप्शन है neither caloric restricted monkeys and दूसरा rhesus था शायद, रीसेस and वाला या controlled monkeys. नॉर हाँ, कंट्रोल मंकीज। हाँ सर ये भी तो मतलब फिर उसमें तब होगा जब वो बात मेंशन ही ना हुई हो या कहा गया हो कि ये दोनों में नहीं है, यानी ये जिस तरह ट्रू फॉल्स नोट गिवन में नहीं होता उस तरह। तो यहाँ पे तो ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन है ना। ठीक तो काइंड ऑफ कैलोरी रिस्ट्रिक्ट, एलिमिनेशन मेथड है ना ये, आप एक आंसर को एलिमिनेट करके यस दूसरा चूज करें। इंडीड बिल्कुल ऐसा ही है। ये एमसीक्यूज में जो हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते थे नॉर्मल एमसीक्यूज में, लिस्टिंग वगैरह में भी, तो ये वही है एक सेंस में देखा जाए तो अगर कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड में लोअर है तो ऑफ कोर्स इन्हीं दो को कंपेयर किया जा रहा है, सो बी आंसर होगा। लोअर इसमें और उसमें ग्रेटर, फाइन। अब हमें पता चल गया इंसुलिन वाले का। अब हम ढूंढेंगे दूसरा डायबिटिक का वर्ड जो है वो ज्यादा इजीली डिस्कवर हो सकता है। तो अब हम डायबिटीज वगैरह से रिलेटेड वर्ड देखेंगे और देखेंगे कौन से मंकीज लेस लाइकली टू बिकम डायबिटिक, लेस लाइकली टू बिकम डायबिटिक। The caloric restricted animals look better on indicators of risk, I think, क्योंकि आगे इसमें डायबिटिक की भी बात की उन्होंने। हाँ देखें किधर गया डायबिटीज का, हाँ ये है। फोर्थ लाइन। They have more normal blood glucose levels pointing to a reduced risk for diabetes। तो ये बात हो रही है कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड की, कि ये क्योंकि यहाँ से कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड की बात हो रही है कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड में क्या है कि रिस्क कम है डायबिटीज के हवाले से। नहीं एक मिनट and also look better on indicators of risk. For example, they have more normal glucose pointing to a reduced risk for diabetes। हाँ जी, reduced risk for diabetes यानी कि डायबिटीज का रिस्क कम है किन में, कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड में, इन्हीं के अंदर डायबिटीज का रिस्क कम है। तो हमने कहा था लेस लाइकली यानी कि कम है किन में, इनमें। तो आंसर है 33 का ए। ठीक है,
अच्छा, अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए किसी के जहन नजर से ये लफ्ज जरूर गुजरा होगा। जी सर, देखा था। तो अभी सर हम हार्ट जाके उसको डिजीज ढूंढेंगे। का भी गुजरा था। सर हार्ट Sorry? डिजीज वाले इसमें सर हार्ट डिजीज गुजरा था। हार्ट डिजीज को, अच्छा हार्ट डिजीज को देखा अभी आपने? यस ओके, सर। वो उधर जाएंगे। मंकीज enjoyed a reduced chance of heart disease, कि कौन सी मंकीज हैं जिसमें हार्ट डिजीज की चांसेस कम थे? Same caloric restricted animals. कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड ही। तो अब हम आंसर लिखेंगे इसका भी ए, क्योंकि मतलब ये भी उसी के अंदर आ रहा है, तो ये भी आंसर होगा ए। अब दो ही सवाल लेते हैं, 34 और 35। तो इनमें से पहले कौन सा करना चाहेंगे? Chronic वाला। क्रॉनिक वाला कर लेते हैं। तो क्रॉनिक लफ्ज ढूंढने के लिए भी जाएंगे और सवाल देख के जाएंगे कि मंकीज एक्सपीरियंस्ड मोर क्रोनिक डिजीज का सवाल है। सर इसमें लिखा हुआ है ना कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम हैव लेस क्रोनिक डिजीजेस। सर monkeys हाँ। kept on calories। सर इसमें तो So इसका तो opposite इसका तो होगा। मोर है तो उसका ऑपोजिट हो Opposite। जाएगा। हाँ, Yes. तो ऑपोजिट क्या था इसका? मंकी समथिंग कंट्रोल। Control. कंट्रोल मंकीज। B। तो आंसर है बी। Yes, sir। अच्छा, अभी जो ट्रेंड है वो ये है कि यूजुअली सारे ऑप्शंस इस तरह के क्वेश्चंस में यूटिलाइज होते जरूर हैं, ये ट्रेंड है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में भी, यस और नॉट गिवन में भी। हाउएवर, अब ये मैं इसको ट्रेंड बता रहा हूं, मैं उसूल के जो एक्सेप्शंस होते हैं वो भी बता दूं कि ऐसे भी टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं कैम्ब्रिज में। अभी मुझे वो आमतौर पर टेस्ट का नंबर याद नहीं होता, क्योंकि वो उस तरह के टेस्ट हम कर चुके हैं डिफरेंट क्लासेस में। किसी क्लास में कोई टेस्ट मिल जाता है, किसी में कोई, कि जिसमें कभी कभार ऑप्शन यूज नहीं भी होते, तो उसको उसूल मत समझना, ट्रेंड समझना बस। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो यानी क्योंकि जाहिर है कि हर मतलब वो एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगी, तो आप माइंडसेट उसी तरह का रखेंगे। अगर कोई ऑप्शन यूज नहीं हुआ, एक सवाल रह गया, तो मुमकिन है कि वो हो, तो उस एंगल से सोचना चाहिए। खैर, लेकिन फिर भी हम कंफर्म करेंगे, तुक्का कभी नहीं लगा सकते। मुमकिन है कि हमने पिछले किसी और सवाल का जवाब गलत किया हो, जहां पे वो जो अकेला रह गया। मुमकिन है कि लेट से यहाँ पे देखें कि अभी तक हमने सी सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं वैसे एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि मुमकिन है हमने किसी और जगह सी की जगह ए या बी लिख दिया हो, और हम समझ रहे हो कि आखिरी सवाल लेता है तो इसमें भी सी है, तो वो गलती हो सकती है, तो इसलिए एहतियातन देख लेते हैं। तो सवाल लेता है भाई कि मंकीज हैव बीन शोन टू एक्सपीरियंस अ लॉन्गर देन एवरेज लाइफ स्पेन। सो अब इसके अंदर हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो हैं लाइफ स्पेन या एवरेज लाइफ स्पेन, और एक्सपीरियंस और लॉन्गर। सो बस लाइफ स्पेन के हवाले से तो बस जाके देख लेते हैं, इजीली आंसर मिल जाएगा। टेक योर टाइम और अच्छे से देख के बताना कि इस पूरे के पूरे में कहां पे है। सर लाइफ स्पेन इन monkeys तो नजर आ गया वहां Yes, पे। sir. सर ये इन Fourth लो last कैलोरी line. इनटेक है। यस, फोर्थ लास्ट लाइन। तो ये कह रहे हैं कि they and other monkeys must be followed still longer, however, to know whether low calorie intake can increase both average and maximum life skills in monkeys। यानी कि अभी ये मजीद देखना बाकी है कि वेदर आया ऐसा होता है कि नहीं है कि लो कैलोरी इंटेक से जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, इनमें भी उनमें भी, दोनों में। दे एंड द अदर मंकीज मस्ट बी फॉलोड स्टिल लॉन्गर। तो बस ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आंसर हमें पहले ही गेस कर चुके थे, तो आंसर सी है इसका, क्योंकि ना ये ना वो किसी का भी पता अभी नहीं है। तो उसूल जो आज की क्लास का जो असल पर्पस है वो ये है कि कोई भी सवाल ऐसे नहीं होगा कि जिसमें कोई ऐसा लफ्ज ना मिले जो आपको आंसर की तरफ गाइड ना करे। बस हमें अलर्ट रहना है, हमें पता होना चाहिए कि हमने किस किस पैराग्राफ को देखा हुआ है मुख्तलिफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए, कौन से पैराग्राफ्स बाकी रहते हैं, और किस किस्म के वर्ड्स
देखिए पूरे क्वेश्चन टाइप को एक साथ पहले देखना चाहिए, हेलीकॉप्टर व्यू या जिसको ड्रोन कैमरा व्यू या बर्ड्स आई व्यू कहें, उसमें बर्ड्स आई व्यू लेके आप देखें कि कोई ऐसा लफ्ज है जो ज्यादा इजीली फाइंड आउट हो सके, कोई प्रॉपर नाउन, कोई नंबर, कोई दूसरा ऐसा कोई लफ्ज जो कॉमन तो है लेकिन कॉमन नाउन तो है लेकिन खुद कॉमन नहीं है, तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना होगा। तो बिल्कुल अलर्ट होके एक अप्रोच के साथ, प्रॉपर अप्रोच के साथ जाना है। तो कल की क्लास प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी रीडिंग की, जिसमें अभी एक ही क्वेश्चन टाइप रहता है जो हेडिंग्स वाला है, जो अभी तक मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि उसमें बिल्कुल अलग ही स्ट्रेटेजी है। जो इस तरह की एक दो बातें हमने इधर उधर देखी थी, तफसील नहीं देखी थी, और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसी तरह के जो रैंडम आने वाले क्वेश्चन एक दो और मिल जाए तो उनको भी कर लेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही काफी है। कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछें, अदरवाइज खत्म। और मुमकिन है कि अगर आपके जहनों में ये सवाल हैं कि जो आंसर्स हैं वो कब वापस मिलेंगे, तो उसका आंसर पहले ही बता दूं कि वो वीकेंड पे आपको मिल जाएंगे। सो उसके अलावा कोई रीडिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जरूर पूछिएगा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर कल अगर लास्ट क्लास है तो हम क्या अदर राइटिंग सैंपल्स आपको मतलब भेज सकते हैं, पीसेस ऑफ राइटिंग ऑन द वीकेंड? जी हाँ, हमारे फॉर्मल जो लेक्चर्स हैं, जो सेशंस हैं, वो अभी कंप्लीट हुए हैं, लेकिन मतलब आप अभी नायकन का ही हिस्सा हैं आप सब लोग। आप किसी दिन अगर कैंपस में मॉक टेस्ट देने के लिए आना चाहें तो आप मुझे एडवांस में बता दें। आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो एवरी वीकेंड आई विल ट्राई टू attempt some of the download some of your answers and try to answer। और अभी अगर आपका सवाल ये है कि इस वीकेंड पे मॉक टेस्ट हो रहा है, तो एक्चुअली इस वक्त हम मंडे से थर्सडे चला रहे हैं, तो आज मॉक टेस्ट का दिन था और अगला फिर नेक्स्ट थर्सडे आएगा। तो टाइमिंग्स जो हैं वो फिर क्योंकि इन दिनों टाइम टेबल बदल रहा है, सो मुमकिन है कि अगले वीकेंड पे फिर कोई और टाइम हो, तो पहले मैं यहाँ पे अपडेट किया करूँगा, क्योंकि अभी शायद हमारी रेगुलर क्लासेस ना होने की वजह से एक दूसरे बाद ना हो, तो पोस्ट कर दिया करूँगा मैं एक दिन पहले या 2 दिन पहले जब मॉक टेस्ट होना हुआ। किसी वीकेंड पे नहीं भी होता टेस्ट। सर जब आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा तो जो क्लासेस मिस की हुई हैं किसी ने, तो वो वहाँ पे ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। और आप मुझे ये भी बता दें कि कौन सी क्लासेस मिस हुई हैं, ताकि मैं न्यू बैच आए तो उसको उसी मॉड्यूल से स्टार्ट कराऊं। सर मेरी राइटिंग की मिस हुई है क्लासेस। एक तो ऐसे था, उससे पहला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस टास्क 1 यानी रिपोर्ट टास्क आपकी 1। मिस हुई है? यस ओके, रिपोर्ट के अलावा क्या मिस हुआ है? और सर स्पीकिंग की भी कुछ लास्ट क्लासेस आई गेस मिस हुई है रमजान में। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि अगर राइटिंग की क्लासेस में एक दो और स्टूडेंट्स हैं जो कैंपस में ये टेस्ट बुक करा चुके हैं, तो अगर राइटिंग रिपोर्ट की कोई क्लास करा सका तो कराऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट बैच का इंतजार करें। मुमकिन है कि 4-5 दिनों में नया बैच बन जाए, तो मैं भी कुछ दिन ऑफ रखना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो मुझे जरूर बता देना। नहीं सर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। जी 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 तहसील। सर मेरी लिसनिंग की मिस हुई है क्लासेस। मेरी भी लिसनिंग की भी कुछ मिस हुई है सर, मेरी ऑलमोस्ट सारी मिस हुई है। सर मैंने लास्ट लेक्चर लिया मुझे था। लगता है कि आपकी काफी टाइम लगा। अच्छा, लिसनिंग में आपने कितनी क्लासेस मिस की हैं तहसीना? सर मैंने सिर्फ लास्ट क्लास जिसमें आप असाइनमेंट्स करा रहे थे वो मैंने अटेंड की थी, बाकी नहीं अटेंड की। अच्छा, मतलब लिसनिंग आपने कोई क्लास नहीं अटेंड की? जी कोई क्लास नहीं की जी, मतलब एक लास्ट वाला जो था वो। क्यों, मतलब क्या रीजन थी? सर मैंने रजिस्टर ही लेट कराया था। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। फिर तो मतलब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना, फिर तो यस आपकी लिसनिंग मॉड्यूल की बात रहती है। अच्छा ये कहे ना, मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा कि आप लोग सब एक साथ आए। अच्छा फिर तो ठीक है, फिर मंडे से लिसनिंग आप करते सर हैं। जान छुड़वाना चाह रहे हैं हमसे? You're fed up with us. Yes. No, not actually fed up, but actually होता है कि even if you Exhausted. are with good people, वो बहुत भी दिन एक से डल लिमिट तक। क्लास रही है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बड़ा डिफरेंस एक्सपीरियंस। हाँ, दिस वाज टू डिफरेंट। इससे पहले जो बैच था वो मुझे बोलने नहीं देते थे। So that was actually beneficial for them कि वो willing थे बोलने के लिए, तो काफी लर्निंग उस तरह से भी होती है sometimes। खैर, लेकिन ऐसा है कि कोई भी सही या गलत तरीका नहीं होता। आई थिंक इट डिपेंड्स द टाइप ऑफ पीपल कि किस तरह के लोग कैसे कंफर्टेबल हैं।
मुमकिन है कि आप लोग मुझे सुन के ज्यादा सीख रहे थे और वो ज्यादा पूछ के सीख रहे थे और बोल के सीख रहे थे, डिपेंड्स। वहां पे भी इसी तरह मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स थे, मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक तो ऑलमोस्ट मेरे फादर की एज के स्टूडेंट भी थे, तो वो आते थे तो वो तो मुझे बोलने नहीं देते थे शुरू में, फिर बाद में मैंने कहा कि थाम के तो बहरहाल वो फिर बाद में कभी कुछ स्टूडेंट्स में कैंपस में भी आए एंड मतलब वो इंटरेक्शन ठीक हो गया था। वो ज्यादा सोशिएबल किस्म के लोग थे, लेकिन मैं एक्चुअली इस क्लास में वैसे ज्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना इंट्रोवर्ट किस्म सम कि मेरी क्लास में कंफर्टेबल हूं, तो अदरवाइज आई डोंट टॉक अ लॉट एंड इधर उधर की बातें कम। सो जितनी किस्म की भी बातें मैंने करनी हो क्लास में कर लेता हूँ। जो कहते हैं ना कि एवरेज एक दिन में एक शख्स के इतने वर्ड्स होते हैं, सो मेरी क्लास में हो जाते हैं, आई एम साइलेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सो बहरहाल अभी कल की क्लास में मजीद हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्लासेस कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही। अच्छी थी ओवरऑल, मजा आया मुझे। एंड मुइज़ जो हैं वो तो मुइज़ और अनवार से तो मैं पिछले कई महीनों से इनसे मेरी क्लासेस हो रही हैं। कैंपस में भी इन दोनों ने क्लासेस ली हैं और ऑनलाइन भी 2-3 मरतबा क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन अच्छा आपने डोमिनेट है बहुत मुझे कर दिया ना। एक्चुअली अभी इनको तो मैंने मुइज़ का सर मुझे सॉरी आपकी अपना आवाज, सर आवाज नहीं आई। अच्छा हुआ कि आपको आवाज नहीं आई। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही। कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बहरहाल अनवार का तो अभी टेस्ट भी बुक हो चुका है, तो इंशाल्लाह अनवार उम्मीद करता हूँ कि आप स्पीकिंग के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो था। तो बहरहाल प्रिपेयर करते रहें। यस जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, यू कैन गो बैक टू स्लीप। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे। इंशाल्लाह फिर कल बात करते हैं। एक्चुअली आई एम इन अ हरी, आई एम गोइंग श्योर समवेयर। सर, श्योर। Okay, ओके, sir. All Allah right. Hafiz. Allah Hafiz, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़ Thanks. सर। Allah Hafiz.